So we have seen in detail now Bohr's model for hydrogen atom, and we know first postulate, second postulate, third postulate. We know what is radius of electron in Bohr hydrogen atom. We have seen what is velocity of electron in nth orbit of hydrogen atom. We have seen hydrogen spectrum depending on transition of electron from nth higher orbit to pth lower orbit. So as I told you कि हम पहले हाइड्रोजन एटम का मॉडल देख लेंगे, then we will generalize it to for general atom. So now I can safely call this as atomic model. तो डिफरेंस इतना ही है, ये बोहर्स का मॉडल ही है. सो बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एंड विल नॉट स्पेंड मच टाइम हियर क्योंकि हमको ऑलरेडी सारे के सारे पोस्टुलेट्स पता है. वी नो एनर्जी इक्वेशंस, वी नो रेडियस इक्वेशंस एंड एवरीथिंग. So we will not go into theory part, we'll just note down equations here. So Bohr's atomic model. तो आपको अगर पहला postulate याद होगा, so according to first postulate, if you remember, necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between electron and the nucleus. So centripetal force is mv square by r equal to. अब the thing is, what we normally do is, हमारे पास एक न्यूक्लियस है. So we have a nucleus, let us say, and there are electrons revolving around this nucleus. हमने हाइड्रोजन में, क्योंकि हमने हाइड्रोजन एटम कंसीडर किया था, तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस यू टेकन ओनली E, राइट? क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में एक ही प्रोटॉन होता है. But in general, if you take any other atom, for example helium, for example lithium, for example boron, for example oxygen, carbon, etc., etc., तो उसके न्यूक्लियस में एक सिंगल प्रोटॉन तो होगा नहीं. So there are of course more than one proton, and you should know proton number is given by Z. Okay, so proton number is given by Z. Z is nothing but, as you know, it is atomic number, not mass number. Mass number is total number of protons and neutrons, and atomic number is Z. So when you talk about Bohr's atomic model, हाइड्रोजन एटम छोड़ के, हाइड्रोजन एटम के लिए भी ये ट्रू ही है, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल टू 1 हो जाएगा, दैट्स इट. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू electrostatic force. So how do you find out electrostatic force here? Same thing, 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2. q1 is Ze, q2 is electron, Ze square by r square. तो हाइड्रोजन के केस में सिर्फ हमने Z नहीं लिखा था क्योंकि Z इक्वल टू 1 होता है हाइड्रोजन केस में. दैट इज ओनली डिफरेंस. नाउ देयर इज वन कंफ्यूजन हियर. आप बोलोगे अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है क्योंकि ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, राइट? पर यहाँ पे हम बोल रहे हैं द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड दैट इलेक्ट्रॉन. तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रू होगा, तो Ze into E, तो यू विल गेट Ze square by r square, राइट? तो यही एक डिफरेंस है. यू हैव अ एक्स्ट्रा Z हियर. Then, if you talk about postulate number 2, according to postulate number 2, only those orbits are allowed in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. तो L equal to nh upon 2 pi, और ये था mvr equal to nh upon 2 pi. तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है. सेकेंड पोस्टुलेट का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला है. गुड. देन नाउ इफ यू बेसिकली यूज दीज टू, आपको याद होगा हमने इन दोनों को यूज करके वी हैव फाउंड आउट व्हाट इज रेडियस. कैसे? तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहां से v मिल जाएगा, तो यू गेट v इक्वल टू nh अपॉन 2 pi 1 upon mr. फिर स्क्वेयरिंग, you will get v square equal to, from this you get v square equal to n square h square upon 4 pi square 1 upon
m square r square. एंड सिमिलरली ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 को फर्दर अगर आप मॉडिफाई करोगे तो r और r कैंसिल हो गया, एंड r एंड r कैंसिल होने के बाद व्हाट यू गेट इज v स्क्वायर, क्योंकि हमको v स्क्वायर चाहिए, तो v स्क्वायर फ्रॉम हियर इज 1/4 pi epsilon 0 z e square by mr, right? So let us call this equation number 2, this is equation number 3 and equation number 4. तो अगर आप देखोगे तो इक्वेशन नंबर 2 का और इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड है सेम, तो राइट हैंड साइड भी होगा सेम. सो फ्रॉम 2 and 4, from equation number 2 and 4, what you will have is 1/4 pi epsilon 0 z e square upon mr equal to n square h square upon 4 pi square 1/m square r square. एक और एक गया, ये भी गया, जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, 4 pi, दिस इज गॉन. तो अल्टीमेटली आर इंटरेस्ट वाज इन फाइंडिंग आउट रेडियस, तो r इक्वल टू, r यहाँ शिफ्ट कर दो, बाकी सबको वहां शिफ्ट करो, तो n स्क्वायर h स्क्वायर, मैं h को लिख देता हूँ, n स्क्वायर मैं यहाँ लिख दूंगा, इप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m e स्क्वायर, राइट? सिर्फ अब एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आपके पास आएगा z, दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो r का जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था, इफ यू सी, इफ यू कंपेयर विद बोहर हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे जनरल कोई भी एटम अगर आप लोगे, तो ओनली डिफरेंस इज z, राइट? तो वंस अगेन हमने हाइड्रोजन मॉडल डिस्कस किया था. हाइड्रोजन मॉडल में z की वैल्यू 1 होती है. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है. तो पहले पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग व्हाट वी सेड, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, राइट? तो वहां पे z नहीं था क्योंकि प्रोटॉन नंबर 1 है हाइड्रोजन में. इन जनरल फॉर एनी अदर एटम you have centripetal force equal to electrostatic force of attraction between nucleus and the electron. अगर मैं higher elements लेता हूँ, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस केस में न्यूक्लियस के अंदर सिंगल प्रोटॉन नहीं है, देयर आर मोर प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन नंबर इज गिवन बाय z. तो जब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो, इन दैट केस इनसाइड दिस यू हैव चार्ज z into e, और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में है उसका चार्ज है e. तो जब फोर्स फाइंड करोगे, फोर्स इज 1/4 pi epsilon 0 q1, बट q1 इज व्हाट, z into e, एंड q2 इज जस्ट e, है ना? चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज e. तो यही डिफरेंस है, दिस z इज अपीयरिंग एक्स्ट्रा नाउ, दैट इज द ओनली डिफरेंस. बाकी सारे के सारे स्टेप्स वही के वही, मतलब पहला पोस्टुलेट और दूसरा पोस्टुलेट दोनों में से v की वैल्यू यूज करके इक्वेट करके यू फाइंड आउट व्हाट इज r. गुड. तो ऑल द अदर स्टेप्स रिमेन एग्जैक्टली द सेम, सिर्फ एक एक्स्ट्रा z यहाँ पे आया, इसके लिए यहाँ पे एक z है. अगर इसी को आप हाइड्रोजन के लिए यूज करना चाहते हो, पुट z इक्वल टू 1. इफ यू पुट z इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा. दिस इज, यू नो व्हाट इज दिस, 0.53. Okay, so this is r1, radius of first orbit. So you can just use this. तो आप इसको लिख सकते हो, therefore rn equal to r1 n square by z, same, exactly the same, right? तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है rn is proportional to n square. फिर हमने फाइंड किया था v का इक्वेशन, v स्पीड का इक्वेशन यहाँ पे है. क्या किया था हमने, ये v के इक्वेशन में r का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट किया. तो वापस कर लो, v इक्वल टू क्या है, v nh अपॉन 2 pi 1/mr, बट व्हाट इज r? r is h square epsilon 0 n square, right? and pi me square z, राइट? तो यहाँ पे NH एक गया, पाई गया,
तो you will have mmb गया, तो what you will have is E square upon 2h epsilon 0 n, यही हमको मिला था फॉर हाइड्रोजन। अब एक्स्ट्रा इज जस्ट z, दैट्स द ओनली थिंग, एक्स्ट्रा z साथ में आएगा यहाँ पे। गुड, तो बाकी सब तो सेम ही है। So if you talk about hydrogen atom, put Z equal to 1. If you talk about helium atom, put Z equal to 2. Right? Lithium 3 and so on so forth, आगे चलता जाएगा जो भी होगा, Z की वैल्यू जो भी आएगी for a given element, I don't remember really now, but you should know. तो ये हो गया आपका V का इक्वेशन। तो जो हमने थ्योरी में लिखा है एग्जैक्टली वही का वही लिखना है, सिर्फ वहां पे हाइड्रोजन एटम की जगह पे फॉर अ गिवन एटम with atomic number Z, बाकी पूरा थियरी एज इट इज चलता रहेगा। नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने एनर्जी का इक्वेशन निकाला, राइट? एनर्जी का इक्वेशन, अब एनर्जी के इक्वेशन में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए यू व्हाट यू डू इज, यू नो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए आपने फर्स्ट पोस्टुलेट यूज किया था। सो फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट necessary centripetal force mv square by r is given by force of attraction 1 upon 4 pi epsilon 0 z e square by r square। ये एक और ये एक तो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स, तो हाफ mv स्क्वायर तो 1 अपॉन 8 pi epsilon 0 z e square by r, ये मिल गया आपको काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम मत बोल देना, एटम इज नॉट मूविंग, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सम ऑर्बिट whose radius is r। फिर हमने ये if you remember correctly, ये आने के बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था। सो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हो? पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही चार्ज इनटू पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला, क्या जनरल फॉर्मूला? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। Q1 is ZE, न्यूक्लियस का चार्ज, और Q2 is माइनस E स्क्वायर बाय r, राइट? तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गया, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा। तो यू जस्ट हैव टू बेसिकली ऐड दीस टू, इन दोनों को ऐड करो, एंड वंस यू ऐड यू गेट टोटल एनर्जी E एज काइनेटिक आपको मिल गया 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 देन Z E स्क्वायर बाय r माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Z E स्क्वायर बाय r। फिर ये भी वही आएगा जो पहले आया था, माइनस 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 Z E स्क्वायर बाय r, राइट? सो एग्जैक्टली द सेम थिंग, एक्स्ट्रा Z। फिर आपने R का इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, तो R का इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 अपॉन -1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 Z E स्क्वायर बाय R, और R क्या है? यू जस्ट हैव फाउंड आउट व्हाट इज R, h स्क्वायर एप्सिलॉन 0, मैं n स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, अपॉन पाई m E स्क्वायर। नाउ यू हैव अ एक्स्ट्रा Z, राइट? तो E इक्वल टू, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट कर दो, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच इज कैंसिलिंग आउट, नथिंग एल्स, माइनस Z स्क्वायर m e रेज टू 4, करेक्ट? वहां पे Z स्क्वायर नहीं था क्योंकि वहां पे Z की वैल्यू 1 थी हाइड्रोजन एटम में, यहाँ पे Z स्क्वायर आएगा अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पे ये है n स्क्वायर। और एक काम करता हूं, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज दिस टर्म is 13.6 eV। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit is minus 13.6 Z square by n square, right? तो ये आपको देगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit of any atom। हम अभी तक सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, यहाँ पे अब एनी एटम,
z स्क्वायर के साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम, तो हीलियम एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2, तो -13.6 इंटू 2 स्क्वायर, राइट, 4 इंटू 13.6 जो आएगा वो। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट, सिंपल, क्लियर। फिर आपने थर्ड पोस्टुलेट यूज करके यू हैव डिराइव्ड इक्वेशन 1 by lambda equal to r 1 by p square minus 1 by n square, that was purely for hydrogen। और मैंने आपको बताया था कि हम इसको बाद में जनरलाइज करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलेंगे इसको बाद में। वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा था, ये होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि ये फॉर्मूला आप किसी भी एटम के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू कैन यूज इट फॉर एनी एटम इन जनरल। तो इन दैट केस En minus EP, whenever electron jumps from higher orbit, nth orbit to lower pth orbit, you have this as hc by lambda। En you have here, उस केस में सिर्फ ये z स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे z स्क्वायर है, तो En is minus m e raised to 4 upon 8 epsilon 0 square h square z square by n square माइनस माइनस प्लस, बाकी तो सब सेम ही आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ n की जगह पे आप डालोगे p, so you will get exactly the same thing over here, only there is p square here। good, this is equal to hc by lambda, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा hc by lambda। तो this is equal to hc by lambda। अब इसमें से you can take out common m e raised to 4 z square upon 8 epsilon 0 square h square। अंदर बचेगा 1 by n square with a negative sign और plus 1 by p square equal to h c by lambda। h और c shift कर दो यहाँ पे, तो what you will get is m e raised to 4 z square upon 8 epsilon 0 square h cube c, right, 1 by p square minus 1 by n square equal to 1 by lambda। तो ultimately what you will get is 1 by lambda equal to, ये जो है this is called as Rydberg constant, so this is r, so what you will get is r z square 1 by p square minus 1 by n square। आ गया एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब इसको एटॉमिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फॉर डिफरेंट एटम यू कैन जस्ट पुट वैल्यू ऑफ z एंड फाइंड आउट। अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो पुट z इक्वल टू 1, so you will get back to the same formula 1 by lambda equal to r 1 by p square minus 1 by n square। और हमने जो सीरीज डिस्कस किए थे लीमेन बार्नर पाशन ब्रैकेट फुंड, वो स्ट्रिक्टली दे आर ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू एनी अदर एटम। नहीं तो फिर लीमेन सीरीज फॉर हीलियम एटम ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट, इट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। एंड दैट वाज द रीजन कि मैंने उस टाइम पे आपको बोला कि वी विल कीप दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रा फॉर लेटर इंस्टेंस, बिकॉज़ अदरवाइज इट वुड हैव क्रिएटेड कंफ्यूजन। तो हर एक एटम के लिए होता है कि नो, इट इज जस्ट फॉर हाइड्रोजन। तो एक बार स्टेप्स अच्छे से देख लो, कुछ नहीं है, इट इज द सिंपल एंड द मोस्ट इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन गेट थ्रू आउट दिस बुक ऑफ फिजिक्स। पोस्टुलेट नंबर 1 सिर्फ एक्स्ट्रा z आएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज नॉट अ सिंगल प्रोटॉन इन दिस केस, दिस इज जनरल केस। हाइड्रोजन होगा तो z की वैल्यू 1 होती है तो हम लिखते ही नहीं है, राइट। पोस्टुलेट नंबर 2 देयर इज नो चेंज, एब्सोल्युटली नो चेंज, क्योंकि पोस्टुलेट नंबर 2 डज नॉट डिपेंड ऑन z, करेक्ट। लेकिन पोस्टुलेट 2 से v मिलेगा, v का स्क्वायर करोगे और यहाँ पे जो v का स्क्वायर है उसको आप बेसिकली इक्वेट करके यू विल फाइंड आउट Rn। ओनली चेंजेस कि Rn का सेम इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में z एक्स्ट्रा है, तो देयर इज एक्स्ट्रा z इन द डिनोमिनेटर ओवर हियर। वेलोसिटी का भी केस वही है, सिर्फ एक्स्ट्रा z इन द न्यूमरेटर। एनर्जी का केस भी वही है, only thing is extra z square, or of course this is in ev, extra z square in the numerator over here। good, then atomic spectra मतलब wavelength जब आप फाइंड करोगे, तो wavelength जब फाइंड करोगे उसमें भी सब सेम है, सिर्फ रिड्सबर्ग कांस्टेंट के साथ एक्स्ट्रा z square है, that's it। so that's how you are supposed to work out this equation for general atom, any atom in general।
So let us now solve some questions. Example 15.1, very easy. Calculate the radius of third orbit of electron in hydrogen atom. तो आपको बेसिकली गिवन में सिर्फ बोला है कि n इक्वल टू 3 and you are supposed to find out radius. So you are supposed to find out r3 basically, radius of third orbit, and obviously you know what is the formula. आप अभी what I'm expecting आपको ये याद होना चाहिए, रेडियस का फॉर्मूला हमने जहां डिराइव किया था, और you should remember this now, rn equal to r1 n square by z. तो rn equal to r1 n square by z, and while solving, you know, for hydrogen atom what you have is, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, you can directly write down r1 n square, but for hydrogen atom z equal to 1, therefore what you will get is rn equal to r1 n square, but what was r1 was 0.53 angstrom, तो ये आपको पता होना चाहिए. therefore basically r3 is r1 times of 3 square. So r1 is 0.53, 3 square is 9, so 9 into 4.77 if I am not wrong, 4.7 कुछ आता है, yes, 4.77 angstrom. So this is how you are supposed to find out radius of third Bohr orbit in hydrogen atom. Next question. In a Rutherford scattering experiment, assume that an incident alpha particle उसका रेडियस दिया है आपको of radius 1.80 fm, that is femtometer. तो radius of alpha particle, nucleus of alpha particle, of course, because alpha particle is just a nucleus of helium atom. So radius of alpha particle is nothing but 1.80 femtometer, or femtometer is 10 power minus 15. Okay, is moving directly towards is important thing. So it is moving directly towards the gold nucleus of radius. The radius of gold nucleus is 6.23 femtometer. So it is 6.23 into 10 power minus 15 meter. If the alpha particle stops right at the surface of the gold nucleus, how much energy did it have to start with? Good. तो ऐसा है, as you know, you must remember basic things. You have a gold nucleus, and you know gold nucleus is heavy, and I gave you a task to check out what is the Z value for gold nucleus, and I am very sure all of you have done this. Z equal to 79 होता है gold के लिए, so you should know mass number ना, atomic number is 79. Atomic number of protons, तो number of neutrons उससे ज्यादा ही होंगे, तो it becomes heavier, 160 plus total mass number. तो gold nucleus क्यों लिया था? क्योंकि it was heavy, और अल्फा पार्टिकल का मास नंबर कितना है? 4, और उसका कितना है? 160 से ज्यादा. तो you should know this basic things. अब आपको बोला ये है कि you have a alpha particle which is moving directly towards, so it is basically going directly towards this gold nucleus. अब होगा क्या? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, ऑफ कोर्स 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 79 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जेड वैल्यू 79 है, तो देयर विल बी रिपल्शन, सो देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन. तो होगा ऐसा कि ये डायरेक्टली जा रहा है, तो इट विल बी रिपेल्ड अवे, बैक स्कैटरिंग, राइट, नॉर्मली. लेकिन इन्होंने बोला है कि बैक स्कैटरिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे. तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज, इफ यू सी व्हाट दे आर टेलिंग यू, दैट इज, अच्छे से पढ़ोगे, if the alpha particle stops right at the surface, मतलब इसके इतना एनर्जी है कि ये रिपल्शन को ओवरकम करके यहाँ तक तो आ ही जाएगा, तो it can reach this point and stops there, right? अगर sufficient एनर्जी नहीं होता तो ये रिपल हो जाता, right? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स will dominate. Good. तो इसके पास उतना एनर्जी होना चाहिए so that it can go and touch the surface of gold nucleus.
हाउ मच एनर्जी डिड इट हैव टू स्टार्ट विथ। तो शुरू में जब मोशन स्टार्ट हुआ तो कितना एनर्जी होना चाहिए था। तो एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मस्ट बी वेरी क्लियर। टोटल एनर्जी is always kinetic plus potential, right? But you should know at infinite distances there is no force of attraction or repulsion. तो जब पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होगा तब उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, राइट? दैट इज व्हाई इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था 11th में व्हाइल डिराइविंग इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बोला था यू ऑलवेज ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी बिकॉज एट इंफिनिटी इट डज नॉट हैव any initial potential energy, so whatever energy will be, it will be only kinetic provided the particle is in motion. और तो बोला ही है कि उसको वहां से लाना है तो इट इज मूविंग ऑलरेडी, तो इसके पास इट विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी, इट विल नॉट हैव एनी पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है, इट इज मूविंग 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 मूविंग, बट ये रिपल्शन है, रिपल्शन है तो जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा, मतलब वर्क हैज टू बी डन, work has to be done to bring this alpha particle close to the gold nucleus, right? वर्क कहाँ से आएगा, काइनेटिक एनर्जी से ही आएगा, और वो वर्क काइनेटिक एनर्जी से आया और किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इन दिस केस kinetic energy, total kinetic energy will be converted to total potential energy when it touches the surface of gold nucleus. तो इनिशियली सिर्फ काइनेटिक था और फाइनली सिर्फ पोटेंशियल है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो हम इसको समराइज कर देंगे, वी विल राइट डाउन लिटिल बिट अबाउट दिस। सो ऑफ कोर्स यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट एंड दे आर टेलिंग यू हाउ मच इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डज इट शुड इट हैव। तो इसका मतलब पूछा तो आपको काइनेटिक एनर्जी ही है बेसिकली, लेकिन फिर काइनेटिक एनर्जी आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना ज्यादा इजी है, 1/4πε0, राइट? गुड, तो हम वो करेंगे, सॉल्व देखेंगे हम उसको। सो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है आपको। देन फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूं बिकॉज इट विल जनरेट कंफ्यूजन इफ आई राइट डाउन एनीथिंग ओवर हियर, तो लेट्स नॉट write it down. So now solution is pretty simple. So as since alpha particle is coming from far away, it initially has only kinetic energy. This kinetic energy will be used to do work against the force of repulsion between gold nucleus and alpha particle, between gold nucleus and alpha particle. This is what you need to know. Then therefore, and this work will be converted to potential energy as alpha particle approaches gold nucleus. Thus at the surface of gold nucleus, when alpha particle stops, kinetic energy
is completely converted into potential energy, right? simple. तो you can say, जरूरी नहीं है इतना सब लिखना, बट ऑब्वियसली आप ये सब स्किप कर सकते थे. You could have said, okay, we are supposed to find out kinetic energy. Done. That's it. तो हो गया. But kinetic energy, how do you find out kinetic energy? Simple है. नहीं याद होगा तो अभी तो बताया मैंने. We have just seen what is kinetic energy. 1/8 pi epsilon 0 ZE square by R. Correct? Right? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे. रिमेंबर, दिस इज फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस विथ एटॉमिक नंबर Z. लेकिन हम जो केस ले रहे हैं वो अच्छे से समझ लो. उसमें आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है which is approaching another nucleus. तो ये याद रखना, otherwise you will end up into confusion. इसका Z1 है, इसका Z2 है, और इसके लिए ही मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जब यूज करते हो तब याद रहता है. क्या याद रहता है? 1/4πε0 Q1 Q2 by R. हाँ, तो ये that was the reason behind writing all this here, because when I say potential energy, you immediately remember 1/4πε0 Q1 Q2 by R, right? अब जब स्टॉप होगा तो ये डिस्टेंस किसका डिस्टेंस? हाँ, मतलब किसका? अल्फा पार्टिकल के सेंटर का और गोल्ड के न्यूक्लियस के सेंटर का, राइट? तो इसका डिस्टेंस. तो अब मुझे बताओ, अल्फा पार्टिकल का रेडियस इज R अल्फा और गोल्ड का रेडियस इज R गोल्ड. तो डिस्टेंस क्या आएगा? R अल्फा प्लस RG, राइट? सिंपल. तो ऐसा करो, 1/4πε0 Q1 is charged on alpha particle which is Z1e 2e. नहीं तो 2 कहां से है समझेगा ही नहीं कभी. 2e. Why 2e? It has 2 protons. और ये आएगा Z2, या फिर इन शॉर्ट मैं ऐसा कर सकता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन और कम कर देते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आई विल राइट डाउन सीधा Q अल्फा Q गोल्ड. Q अल्फा Q गोल्ड, अल्फा पार्टिकल Z अल्फा और ये Z गोल्ड इंटू E अपॉन डिस्टेंस विल बी R अल्फा प्लस R गोल्ड, right? And I will keep this diagram because this will help you to understand the question. तो ऐसा करेंगे, इसको बोल देंगे हम लोग, this is nothing but, of course you know, this is alpha particle, this is gold nucleus. तो alpha particle का charge Z alpha is 2 and Z gold is 79, right? Then substitute the values, therefore you get kinetic energy is equal to how much? 1/4πε0 is 9 into 10 power 9. This is 2. This is 79 and E into is E square upon R alpha plus R gold. 1.8 and 6.23. So 1.8 plus 6.23 into 10 power minus 15. Then -15, क्योंकि वो फेमटोमीटर था तो -15 आएगा वहां पे. ओके, तो -15. अब एवरीथिंग ऑल गुड? यस. तो 9 10 पावर 9 2 into 79 82 था 160, 2 का माइनस कर दो 158. तो दिस इज 9 into how much is this? 158 और क्या रह गया? 10 पावर 9 चार्ज ऑन. एक्सेलेंट, वेरी गुड. लेकिन आपको पता है ये जूल में मिलेगा, राइट? ईवी में लाना तो क्या करते हैं? डिवाइड बाई. तो सम बुक्स और सम पीपल वो क्या करते हैं? पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर आखिरी में डिवाइड बाई ई करते हैं. गुड. व्हाट आई विल डू इज नॉट दिस.
मैं ऐसा करूंगा, ऐसा लिख दूंगा यहाँ पे लिख दिया EV और डिवाइड कर लिया E के साथ और एक ही कर दिया कैंसल आउट। तो दिस विल रिड्यूस कैलकुलेशन टाइम। हो गया कन्वर्ट ईवी में, गुड। तो मेरा आंसर यहाँ पे जो भी आएगा ईवी में आएगा और डायरेक्टली मैं लिख दूंगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन अरे इजी है, 6.2 में 1.8 ऐड किया तो 8 आ गया, 8.03 है ना, 8.03 इंटू 10 पावर माइनस 15 ईवी। गुड। देन मैजिक ऑफ नंबर्स, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। हाउ कम? देखो ये क्या है आपके पास 1.58, अगर मैं रफली इसको 160 मान लेता, इमेजिन 160 है, ओके तो 160 है तो 160 इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 2, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 2 यहाँ पे दे दिया माइनस 21, 1.6 इंटू 1.6 इज 2.56। Look, what I am saying is 158 को लिख दो 160, 160 को लिख दो 1.60 इंटू 10 पावर, ये माइनस 2 इसको दे दो, कितना हो गया माइनस 21। यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1.6 इंटू 1.6 कितना होता है 2.56 और ये आ गया आपके पास 9, 10 पावर 9 और ये माइनस 21 था, कितना हो गया माइनस 21 एंड प्लस 9 कितना होता है 12, तो 10 पावर माइनस 12 और ये ऊपर आ जाएगा तो 10 पावर 15 और नीचे है 8। गुड, राइट। 1.6 इंटू 10 पावर प्लस 2, यस, गुड। तो अब कितना आएगा टोटल? वेल मैं लिख ही देता हूं एक नंबर, 9 इंटू 160, तो 1.6 इंटू 10 पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन 8.03 इंटू 10 पावर माइनस 15, 1.6 1.6 2.56, ये आ गया 9। गुड, ये आपका आ गया इन टोटल कितना आएगा ये माइनस 17 और ये ऊपर जाएगा प्लस, तो कितना आ गया माइनस 17 और प्लस 15 कितना होता है माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 और आंसर किसमें है ईवी में है, अपॉन कितना बचा 8.03। Do you know this is 2 cube and 256 is what? Do you know what is 256? 2 raised to 5 is 32, 2 raised to 6 is 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 32, 2 raised to 6 64, 2 raised to 7 128, 2 raised to 8, 2 raised to 8। तो अगर आपको सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेशन को, जहां आप लोग अटक जाते हो तो नंबर्स पता होने चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा 9 इंटू 256 इंटू 10 पावर माइनस 2 और माइनस 2 कितना आ गया माइनस 4 अपॉन 8 है, तो दिस विल बी 9 इंटू 2 raised to 8 अपॉन 2 raised to 3 इंटू 10 पावर माइनस 4। हाउ मच इज दिस 2 raised to 5, what is 2 raised to 5? 32, what is 32 9s? 320 में से 32 माइनस करना है 288, तो 288 इंटू 10 पावर माइनस 4 EV, तो ये आना चाहिए आंसर। दिस इज व्हाट यू विल गेट डेफिनेटली 228.31 MeV, 28.31 MeV, MeV is million, right? Million electron volt, correct? इन्होंने MeV लिखा है यहाँ पे, तो कैलकुलेशंस इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग ओवर हियर। गुड, तो व्हाट वी हैव डन इज करेक्ट। MeV आएगा कैसे 10⁶ आ नहीं सकता, आ सकता है क्या? ओके, 288 इंटू 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4 और अगर मैं प्लस 6 कर रहा हूं तो मुझे माइनस 6 को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि MeV इज मिलियन, तो मिलियन ये हो गया मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैंने माइनस 6 और प्लस 6 एडजस्ट कर दिया। हाउ मच इज दिस 10 पावर minus 10, so there is something which is not correct there, so this is how you are supposed to solve।
तो गुड क्वेश्चन, कैलकुलेशंस आपको करना पड़ेगा खुद को, यू हैव टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट। So just a small correction, ये 10 power 9 रह गया, तो you have to put 10 power 9 over here, 10 power 9. This is quick. Minus 10 plus 2, minus 10 plus 2, minus 8, और ये ऊपर जाएगा plus 15, plus 7. तो ये आ गया आपके पास plus 7. तो plus 7, तो here 256 को 2.56 में लिखा, 256 into 10 power minus 2 और ये 10 पावर 7, तो ये कितना आ गया? हाउ मच इज दिस? 5, 10 पावर 5, बाकी तो सब ठीक है, ये 10 पावर 5 आ जाएगा, तो 10 पावर 5। अब 10 पावर 5 ईवी में आ गया, तो 10 पावर 5, एंड दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट एन इशू हियर, दिस इज 10 पावर 5। तो अगर मुझे 10 पावर 6 करना है इधर, तो क्या करेंगे? 10 पावर माइनस 1 एडजस्ट करेंगे, तो 28.8, और ये बन गया आपका MEV। तो दैट इज व्हाट यू गेट, 28.31 इज एग्जैक्ट आंसर। वी हैव डन रफ कैलकुलेशंस, तो 28.8 हमारा आ रहा है, दैट इज करेक्ट, MEV। नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the energies of first two excited states of electron in hydrogen atom. So you see, most of the questions are on hydrogen atom, and that is why we first discussed the simplified model, that is hydrogen atom. What are the excitation energies of the electron in these orbits? So you're supposed to find out energy in first two excited states and what are the excitation energies. तो पहले क्वेश्चन समझ लो, हाइड्रोजन एटम में as you know you have a nucleus, then you have orbits. ये पहला ऑर्बिट है मान लो, and you have more orbits there. ये एक ऑर्बिट, then ये दूसरा ऑर्बिट, पहले और दूसरे में बहुत ज्यादा गैप होता है। You just saw yesterday, आपने देखा कि पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट, they are far apart from each other. Then you will have one more orbit, let us say ये थर्ड ऑर्बिट आ गया आपका, so this is third orbit, more or less like this. Now what you need to know is, आपको पूछा है what are the energies of electron in first two excited states, तो पहले दो excited states कौन कौन से ये पता होना चाहिए, 2 and 3. n equal to 1 is ground state, n equal to 2 is first excited state, and n equal to 3 is second excited state. So first of all you are supposed to find out first excited state energy, energy of electron in first excited state. और first excited मतलब that is n equal to 2, second orbit, क्योंकि first excited is nothing but second orbit, ये पता होना चाहिए. So this is what you are supposed to find. Also you are supposed to find out energy of electron in second excited state, energy of electron in second excited state, क्योंकि पहले दो excited state बोले तो फिर second excited state. What is second excited state? n equal to 3. So this is what you're supposed to find out, and what else you're supposed to find out is excitation energies. Excitation energy मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आपका, इमेजिन इलेक्ट्रॉन आपका अगर ग्राउंड स्टेट में है और उसको अगर फर्स्ट एक्साइटेड में ले जाना है, राइट, एक्साइटेशन एनर्जी मतलब यू हैव टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, E1 माइनस E2, राइट। और अगर उसको सेकेंड एक्साइटेड में ले जाना है तो E1 माइनस E3, नॉट E2 माइनस E3, इट इज, क्योंकि ग्राउंड से जाएगा तो E1 माइनस E3. तो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट फर्स्ट, दैट इज E1 माइनस E2. दिस इज excitation energy for first excited state, and E1 minus E3, this is excitation energy for second excited state. Good. Assuming that the transition is from ground state. Good. तो ये आपको पता है. अब formula is simple. What formula you will be using is just one thing. En equal to minus 13.6 by n square EV.
क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है तो मैंने यहाँ पे Z स्क्वायर नहीं लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 होती है। तो सिंपल सिंपल, तो यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग नाउ एंड देन व्हाट यू विल गेट इज नंबर 1, आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी मतलब E2। तो नंबर 1, फॉर n equal to 2 you will get, for n equal to 2 you will get E2 equal to minus 13.6 by 2 square EV। और ये आपको कल ही हमने देखा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हाँ, minus 3.4, okay, so E2 equal to minus 3.4 EV। and number 2, for n equal to 3, E3 will be minus 13.6 by 3 square EV, 1.5, okay, 1.5, so minus 1.5 EV, 13.6 by 9, ठीक है। Then you are supposed to find out E1 minus E2. What is E1? Minus 13.6, and what is E2? You just found it out. कितना? Minus 3.4. So this is 10.2 EV, right? So well, basically just to tell you, आपको क्या पूछा था? Excitation energy, isn't it? Right? Excitation energy. So is this correct? Yes, no? नहीं, प्लस चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। ये तो डिफरेंस हो गया, आपको चाहिए, याद है क्या, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट माइनस 13.6, उसको अगर फ्री करना है, फ्री मतलब आयोनाइज करना है तो प्लस 13.6 या ग्रेटर, अगर एक्साइट करना है तो प्लस वैल्यू चाहिए, प्लस चाहिए। तो आई विल मेक अ स्मॉल चेंज, दैट्स इट। मॉड विल मेक श्योर दैट द वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो मॉड वैल्यू ले लेंगे। तो मॉड वैल्यू ले लोगे तो आपको काम ज्यादा आसान होगा। तो यू जस्ट हैव टू टेक मॉड ऑफ दिस, so this is equal to 10.2 EV. This is excitation energy, right? Good. Then last part of this question is mod of E1 minus E3. What is E1 minus 13.6 and what is E3? 1.5. Yes, good. तो कितना आएगा? 12.1. This is 12.1 EV. So these are the excitation energies, right? To be precise, अगर exact करोगे, exact करने का मतलब मेरा ये होता है कि आपने मुझे ये बताया ना, ये 1.51 होता है। अगर exact करोगे तो यहाँ पे ये आएगा 1 और यहाँ पे 1 आने का मतलब है ये आएगा 12.09. So this will be 12.09. To do exact calculations, you will get this. Good. So done. That's it for today. We'll continue with more in the next session.